Gravitational field is the region around the mass in which gravitational force due to that mass could be experienced. In which gravitational force due to that mass could be experienced. For any mass, gravitational field extends up to infinity. But the force which it can exert on other masses. So for any mass के बाद repeat कर दो. क्या लिखा था मेरे को ऐसे बताओ, मैंने याद नहीं किया होता. कहाँ तक लिखा आपने? So for any mass gravitational आगे नहीं लिखा. थोड़ा मतलब 2-3 वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस पीछे का पढ़ो ना, मेरे को तभी पता चलेगा कहाँ से मिस है. Gravitational field is the region around the mass in which gravitational force could be experienced. For any mass, gravitational For any mass, gravitational force it can exert on other masses goes on decreasing with increase in distance. Next paragraph में लिखो. Intensity of gravitational field. Intensity of gravitational field or gravitational field intensity. Intensity of gravitational field or gravitational field intensity is defined as gravitational field intensity at any point is defined as the force acting on unit mass placed at that point. Force acting on a unit mass placed at that point, or gravitational field intensity sorry, gravitational field intensity of mass m at any point is gravitational field intensity of mass m at any point is force per unit mass acting at that point. Force per unit mass acting at that point. कि मेरे पास जैसे एक स्मॉल मास है, मेरे को इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट p. तो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, प्लेस एन इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 kg. इस 1 kg के मास पे m kg के कारण जो फोर्स लगेगी that will be attractive. और जो 1 kg पे फोर्स लगेगी दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो कितनी फोर्स लगेगी? एक मास m, दूसरा मास 1/r². वेक्टर क्वांटिटी है ये. तो इसका मैग्नीट्यूड है gm/r² और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है.
1 kg पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी। डायग्राम बनाओ फिर लिखते हैं। So you can write as shown in figure. Gravitational field intensity of mass m, capital M. Gravitational field intensity of mass capital M at a distance r is given by the force which acts on 1 kg mass placed at P and is I is equals to gm by r square. और दूसरा वे जो मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखाई थी उसमें मैंने कहा था फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास मतलब अगर ये m kg का हमारे पास मास है और आपने पॉइंट P पे फोर्स निकालनी है तो प्लेस अब m kg मास ओवर हियर, m kg पे फोर्स कितनी लगेगी? And intensity of gravitation is force per unit mass. So यहाँ तो आप सीधा 1 kg का मास रख के ही फोर्स निकाल लो, जो फोर्स होगी वही इंटेंसिटी है। या m kg का मास रख के फोर्स निकालो, देन फोर्स पर यूनिट मास इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं कि जहां पे भी आपने इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे इमेजिन करना है कि 1 kg का मास पड़ा है, उस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो नोट कर लो दोनों साइड, बस दोनों वे में कर सकते हो आप इसको। अगर मैं इससे पूछूं यूनिट्स क्या होंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के, इट्स आइदर फोर्स ऑन यूनिट मास और फोर्स पर यूनिट मास। तो यूनिट क्या हो जाएंगे फिर? न्यूटन बाय मीटर। पर मीटर, न्यूटन पर केजी। अच्छा वो, हाँ न्यूटन पर केजी और डाइन पर ग्राम। और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बतानी है तो इसे जिस भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां पे एक इमेजिनरी 1 kg का मास रख के देखो, जिस डायरेक्शन में उस 1 kg पे फोर्स एक्ट करेगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो अट्रैक्टिव ही होगी हमेशा। सो यू कैन राइट it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity and its direction at any point is, and its direction at any point is the direction in which unit mass experiences force, direction in which unit mass experiences force when it is placed at that point, when it is placed at that point. When it is placed at that point. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। डायरेक्शन एट एनी पॉइंट Is the direction in which unit mass experiences force when it is placed at that point. Unit mass experiences force when it is placed at that point. Units of I in SI. In SI the units are Newton per kg and in CGS the units are dynes per gram, and in CGS the units are dyne per gram. Next, gravitational potential. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे हम तो इसमें जैसे ग्रेविटेशन की निकाल रहे हैं, अगर हम किसी और फोर्स की निकालें तो सर अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फिर उसकी निकाल सकते हैं डेंसिटी
ये सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए अप्लाई होता है इंटेंसिटी या पोटेंशियल? सर इंटेंसिटी इंटेंसिटी किसी की भी निकल आती है, पोटेंशियल नहीं निकलती। इंटेंसिटी तो ग्रेविटेशन है तो उसके लिए 1 kg का मास रखा है, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो 1 कूलम का चार्ज रख देंगे, डेफिनेशन बदल जाएगी ना, हर बारी 1 kg नहीं रखना ना। सो यू कैन नेक्स्ट राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? पढ़ी हुई है 9th-10th में डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट electric field. Work done to move unit charge from infinity to that point. Okay. That point मतलब? Point in That point मतलब? यहाँ पे मास पड़ा है। That point मतलब जिस जहाँ पे पोटेंशियल निकाल ली। मैं अभी इलेक्ट्रिक की बात करता हूँ, आपने वही पढ़ा है। सो आपने कहा वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब जहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है वो पॉइंट। ये किसकी पोटेंशियल है जो आप डिफाइन कर रहे हो? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये किस चीज की पोटेंशियल है? और अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता? बिकॉज अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट तक लाने का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, तो हर कोई उसकी अलग पोटेंशियल निकाल देगा। तो किसकी पोटेंशियल है? पोटेंशियल उस पॉइंट की है, पोटेंशियल यूनिट चार्ज की है, या पोटेंशियल किसी थर्ड चीज की है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। फोर्स की पोटेंशियल है। फोर्स की पोटेंशियल नहीं होती। सर उस पॉइंट की पोटेंशियल है। चलो यही बात कर लेते हैं। वर्क डन निकालते कैसे थे? वर्क डन हम कैसे निकालते थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपसे बोलूं मेरे पास मैंने इस किसी एक पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है, मैंने इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालनी है। तो एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आया, फोर्स कौन सी है? हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? वर्क डन निकालना है तो फोर्स तो चाहिए ना। electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आ रही है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं नजर आ रहा है कुछ जो फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगाएगा? कुछ है तो सही नहीं सिस्टम में। वो दोनों पार्टिकल्स के आपस में अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा पार्टिकल कौन सा? आपकी डेफिनेशन में दूसरा पार्टिकल तो है ही नहीं कोई। सर जो वो चार्ज हमने की इन्फिनिटी से ला रहे हैं सर, उसकी भी तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो वही तो है बस एक चार्ज, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, दूसरा चार्ज कौन सा? एक को तो हम इन्फिनिटी से पी तक लाए, तो बड़े इन्फिनिटी से पी तक अगर कुछ है ही नहीं सिस्टम में तो उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगती, वर्क डन तो जीरो आ जाएगा। अगर सिस्टम में और कुछ है ही नहीं तो फोर्स कौन लगाएगा? पोटेंशियल हमेशा किसी चार्ज की निकलती है। सिस्टम में पहले से एक चार्ज होगा, इस चार्ज की पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट पी पे। तो इसकी प्रेजेंस में 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो इस चार्ज की पोटेंशियल होगी एट पॉइंट पी। सेम अब ग्रेविटेशन में हम करेंगे। ग्रेविटेशन में हम करेंगे कि अगर मेरे पास कोई मास है, मान लो m,
मेरे को इसकी पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट P पे विच इज एट अ डिस्टेंस R। तो मैं एक 1 कूलम के चार्ज को, सॉरी 1 kg के मास को इंफिनिटी से P तक लेके आऊंगा। तो इस 1 kg के मास को इंफिनिटी से P तक लाने में जो वर्क डन होगा इसकी फोर्स का, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास M एट पॉइंट P। अब जब मैं 1 kg के मास को लेके आ रहा था, से मान लो वो यहां पे कहीं पे था, और उसका M से डिस्टेंस था x। जब 1 kg का मास इस पॉइंट पे है, मान लो A पे, तो इस पे फोर्स कितनी लग रही है इसके कारण? 1 kg के मास पे m kg के कारण कितनी फोर्स लग रही है व्हेन इट इज एट पॉइंट A? GM over R over X square. gm ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको ये कि अगर वो x डिस्टेंस पे है तो न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस gm इंटू 1/x²। इसे देखते ही हमें पता चल गया कि ये फोर्स वेरिएबल है, मतलब हम F डॉट एस नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। हमने दो वर्क किए थे ना, कांस्टेंट फोर्स हो तो F डॉट एस, वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। तो मैं अगर A से B तक ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता हूं तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? F और dx में एंगल, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी? 0 Degree. सेम एज dx या ऑपोजिट टू dx? Same. सेम है। सेम। तो दिस विल बी कहां से कहां तक लाना है? x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? इनिशियली कहां पे था? इन्फिनिटी पे। फाइनली कहां पे आ गया? R. तो इंटीग्रेट कर देते हैं, x वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, और जो वर्क डन आएगा दैट विल बी पोटेंशियल। अब मेरे को ये बताओ वो पोटेंशियल पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी? और ये इन्फिनिटी से ही क्यों लाते हैं? वाई फ्रॉम इन्फिनिटी? वाई फ्रॉम इन्फिनिटी? सर इन्फिनिटी पे हम लोग मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मानते हैं। तो उससे क्या होगा? बिकॉज पोटेंशियल डिफाइन ही तभी होती है जब फोर्स हो। इन्फिनिटी पे फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो उसको हम मान लेते हैं रेफरेंस। रेफरेंस मतलब वहां पे पोटेंशियल 0 है। तो इन्फिनिटी से P तक लाए तो पोटेंशियल बढ़ी या कम हुई? अगर मैं इसको कहीं पे भी छोड़ दूं तो अपने आप आ जाएगा या लाना पड़ेगा P तक? अट्रैक्टिव फोर्स है, आएगा सर. अपने आप अपने आएगा। आप आएगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल। बेसिकली कभी भी किसी चीज की पोटेंशियल नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। जैसे हम चार्जेस की पढ़ेंगे ना, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल निकालूंगा वो पॉजिटिव आएगी, बिकॉज मैं 1 कूलम के चार्ज को लाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। पर अगर पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल निकालूंगा तो 1 कूलम अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव की पोटेंशियल पॉजिटिव आएगी। ये पढ़ा हुआ है ना आपने, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? Negative. और प्रोटॉन पे? Positive. Positive. इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट फिजिकली मीन?
किसने आंसर दिया था ये? प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तानिश? यस सर। तानिश, चलो। आपका नाम तानिश क्यों है? आपका नाम तानिश क्यों है? या बाकी भी बैच में जो नाम नजर आ रहे हैं जैसे करण, अर्शदीप, तो अर्शदीप का नाम अर्शदीप क्यों है? यार अपने नाम का नहीं पता? अनमोल? सर आइडेंटिटी के लिए। क्या चीज? आइडेंटिटी एक के लिए। आइडेंटिटी। अच्छा, आपने अपना नाम खुद रखा था, किसी ने रखा था, या खुद ही बोला था मेरा नाम रखो? नहीं सर, पेरेंट्स ने रखा था। किसी ने रखा होगा ना घर में, पेरेंट्स, दादा दादी, चाचा मासी, किसी ने तो नाम रखा ही होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है, नाम है सिर्फ। डजंट मीन्स कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता वो 0 से ज्यादा और नेगेटिव 0 से कम है। दो तरह के चार्जेस थे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम रख दिए, एक को उसने कह दिया पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज नेवर मीन्स कि उसकी वैल्यू 0 से कम है कुछ, वो सिर्फ नाम है। वो इतनी कंफ्यूजन है कि जब हम नेगेटिव लगाते हैं तो हमें लगता है कि 0 से कम वैल्यू होगी, पॉजिटिव लगा दिया तो 0 से ज्यादा होगी। वो अगर बेंजामिन और फ्रैंकलिन नाम रख देता, आप आज तक यही कर रहे होते कि इलेक्ट्रॉन पे बेंजामिन चार्ज है, प्रोटॉन पे फ्रैंकलिन चार्ज है। So these are just the names given by Benjamin Franklin, has no physical significance as such. अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें, हमने इसको सॉल्व किया, अपने आप पास आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल नेगेटिव आएगी। और पोटेंशियल डिफाइन तभी होगी क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो आप वर्क डन निकाल सकते हो, नहीं तो वर्क डन हर बार ही डिफरेंट आ जाएगा। सेम कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी पे भी लग जाता है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाई करती है कि देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक बॉडी की नहीं निकलती। अगर हम इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जीज की बात करते हैं, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दो चार्जेस की, दो मासेस की, तो वो कभी एक बॉडी की नहीं निकलती। जैसे आपकी भी mgh हमने लिखी फॉर्मूला, तो mgh इज आपकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो दूसरी बॉडी अर्थ थी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सिग्निफाई करती है अट्रैक्टिव फोर्स, और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाई करती है रिपल्सिव फोर्स। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या सिग्निफाई करती है? अगर किसी चीज की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, वो क्या सिग्निफाई करती है? आपने नेगेटिव एनर्जी पढ़ी है ना पहले कभी, कि किसी चीज की टोटल एनर्जी नेगेटिव है? सर इलेक्ट्रॉन की थी। -13.6 z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इसका मतलब क्या था? सर कि वो अभी बाउंड है, अगर इतनी एनर्जी उसे प्रोवाइड करोगे तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस के। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है -13.6 z²/n², वो बाउंड सिस्टम है, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, फ्री करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी से ज्यादा है या कम है? इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, कितना? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, बिकॉज सर्कुलर में हमने पढ़ा था ये कि टोटल एनर्जी हमेशा हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की। कभी भी बॉडी, इसमें भी प्रूव कर सकते हो आप, अर्थ की टोटल एनर्जी अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी से हाफ है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी से हाफ है। जैसे मैंने एस्केप वेलोसिटी टर्म सुनी कभी, क्या होती है? यस सर। कि हम कितनी वेलोसिटी दें कि बॉडी एस्केप कर जाए। तो अगर मेरे को जैसे बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन में आयनाइजेशन एनर्जी निकालते थे, इसमें मैं एस्केप एनर्जी निकाल सकता हूँ। एस्केप एनर्जी का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं अभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है या आपकी टोटल एनर्जी जो है रिलेटिव टू अर्थ -50 है, -50 यूनिट्स, तो आपको फ्री करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +50। +50 +50। तो वो एस्केप एनर्जी होगी। तो वहां से हम आपकी फिर वेलोसिटी निकाल सकते हैं
कि आपको +50 एनर्जी देनी है तो आपको कितनी वेलोसिटी देनी पड़े ताकि आपकी एनर्जी +50 हो जाए। सो उस तरह से हम कंसेप्ट को सॉल्व किया करेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस काफी रहती है एनर्जी के कंसेप्ट की, और आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आसान बनाएगा बिना इंटीग्रेशन के। जैसे हम कल कर रहे थे, वो वेलोसिटी एट द सेंटर निकालनी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा ही सॉल्व हो जाएगा। बट फर्स्ट यू राइट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये डायग्राम बना लो सिर्फ। सर एक बार आपने ये पहले बोला था हाफ हो जाती है एनर्जी पोटेंशियल के, वो समझाना एक बार जरा। टोटल एनर्जी हाफ हो जाती है पोटेंशियल की। मैं अभी प्रूफ ही कर देता हूँ ग्रेविटेशन में, पर वो जनरल हर जगह सर्कल में लग जाएगा। इसमें मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी आगे है हमारी डेरिवेशन। हम सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालते हैं और सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सो उससे, या अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही ड्राइव हो जाएगा तो ही पता चल जाएगा, बिकॉज वो फॉर्मूला से प्रूफ करना पड़ेगा। सेकेंड, फर्स्ट राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential of a mass. Gravitational potential of a mass at any point. Gravitational potential of a mass at any point is defined as gravitational potential of mass at any point. Gravitational potential of mass at any point is defined as the work done to move unit mass from infinity to that point. Work done to move unit mass from infinity to that point. As shown in the figure, next paragraph में लिखना, as shown in the figure, gravitational potential of mass m at a distance r can be calculated as the work done to move 1 kg mass work done to move 1 kg mass from infinity to p as the gravitational force depends on as the gravitational force depends on distance between the two masses. Therefore, if 1 kg mass is moved from infinity to p, force acting is variable. Force acting is variable. If at any instant सर वो रेज हो गया, क्या हुआ? आपने जो लिखा था वो रेज हो गया थोड़ा सा, मैं लिख नहीं पाया था वो वाला।
ये अपने आप इरेज पता नहीं क्यों कर रहा है। एक्स रेज टू पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी ये वैल्यू? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, so 1 by infinity is 0. So potential is minus gm by r. इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल के लिए। और V पोटेंशियल का सिंबल होता है, इट्स फॉर ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों में हम V से ही डिनोट करेंगे। सो V इज इक्वल टू माइनस gm by r। नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है कि डायरेक्शन कौन सी है पोटेंशियल की? डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल इज, negative sign signifies that direction of potential is same as that of force. same as that of force। सेम या ऑपोजिट? और कोई? नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है कि इसकी कौन सी डायरेक्शन है? सर शायद पोटेंशियल डिक्रीज हो गया इंफिनिटी से, तो डायरेक्शन नहीं होगी ना, वो तो मैं ऐसे ही गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया इट्स वर्क डन, तो वर्क की डायरेक्शन थोड़ी होती है। हम ये कभी थोड़ी बोलते हैं कि वर्क डन इज 10 जूल्स टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो potential is also a scalar quantity because it is work done to move unit mass. Negative sign signifies that it's an attractive force. Negative sign does not signify कि इसकी कोई डायरेक्शन होगी। नेगेटिव साइन से ये सिग्निफाई कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है और स्केलर क्वांटिटी है ये। सो यू कैन राइट, यहां तक लिख लिया तो लिखो आगे।
Potential is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. It is as it is work done per unit mass. As it is work done per unit mass to move the mass from infinity to that point. Units of potential. Work done per unit mass. तो यूनिट क्या हो जाएंगे? वर्क पर यूनिट मास के. वर्क के यूनिट जूल्स, मास इज केजी. सो जूल्स पर केजी और सीजीएस में एनर्जी के यूनिट, सीजीएस में एनर्जी का यूनिट अर्ग per gram. So erg per gram or joules per kg. So units of potential. In SI the units are joules per kg, and in CGS the units are ergs per gram. नीचे नोट में लिख लो, नेगेटिव साइन only signifies that. Negative sign only signifies that gravitational force is attractive. Also, if number of masses are placed around the point where potential is to be calculated, if number of masses are placed around the point where potential is to be calculated, then total potential is the scalar sum of potential due to individual masses. Scalar sum of potential due to individual masses. Scalar sum of potential due to individual masses. Next, gravitational potential energy. So you can write gravitational potential energy for a system of two masses. Gravitational potential energy for a system of two masses is defined as work done to move the masses is defined as work done to move the masses from infinity to their respective positions. तीन masses होते तो भी यही कहते हैं कि work done to move the three masses from infinity to their positions. Work done to move the two masses from infinity to their respective positions. It is a scalar quantity. और वर्क डन है तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एनर्जी है वैसे भी तो जूल्स इन एसआई, अर्ग्स इन सीजीएस. It is a scalar quantity and units are joules in SI and erg in CGS. अब ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन करूंगा मैं, सिर्फ डेफिनेशन अलग है, डेरिवेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा. मैंने कहा कि अगर मेरे को दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, M1 and M2, they are placed distance R12 apart. तो मेरे को वर्क डन निकालना पड़ेगा M1 को इन्फिनिटी से A तक लाने का वर्क डन और M2 को इन्फिनिटी से B तक लाने का वर्क डन. तो हम एज्यूम करेंगे पहले सिस्टम में कोई मास नहीं है,
मैं m1 को इन्फिनिटी से a तक लेके आता हूँ। अगर सिस्टम में कोई मास नहीं है और मैं m1 को इन्फिनिटी से a तक लेके आ रहा हूँ तो कोई वर्क डन होगा? नो सर। नो सर। बिकॉज अभी सिस्टम में कोई मास नहीं था, तो इसलिए एक मास की पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं निकलेगी। मैं m1 को इन्फिनिटी से a तक लेके आऊंगा तो वर्क डन 0 आएगा। फिर m1 को a पे रख दिया, m2 को इन्फिनिटी से b तक लाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ m1। तो जब मैं m2 को मूव करूंगा इन्फिनिटी से b तक, तो जैसे हमने अभी किया वैसे ही कर लो। से पॉइंट p1 या p2, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, m2 अगर p1 पे है तो फोर्स एक्ट करेगी g m1 m2 बाई x स्क्वायर, और वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? f डॉट dx। f और dx में एंगल जीरो। 0। तो ऑलमोस्ट वही डेरिवेशन आगे से, उसमें 1 kg को मूव कर रहे थे, इसमें m2 को मूव कर रहे हैं। तो पहले रिजल्ट हमारा आया था माइनस जी एम बाई आर, अब क्या आ जाएगा? फोर्स अगर हमारे पास थी पिछले आर्टिकल में जी एम बाई एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल आई माइनस जी एम बाई आर। अब अगर फोर्स है जी एम वन एम टू बाई एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल क्या आएगी? सो बस यही चेंज आना है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, सिर्फ m1 की जगह अब m1 m2 आता जाएगा। सो डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं इसको। डायग्राम बना लो, देन वी विल राइट। So you can write, for example, if we have system of two masses, for example, if we have system of two masses, m1 and m2, if we have system of two masses, m1 and m2, separated by distance r12, then potential energy of the system is, sum of work done. Potential energy of the system is sum of work done to move these two masses from infinity to A and B. If m1 is moved from infinity to A, if m1 is moved from infinity to A in absence of any other mass, if m1 is moved from infinity to A in absence of any other mass, no force acts on m1, and work done will be 0. No force acts on m1 and work done will be 0. If m2 is moved from infinity to B, variable force acts on m2, force acting on
So minus gm1m2 by r12 और लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे? This work done is equal to potential energy. So we can write this work done will be equal to potential energy of two masses m1 and m2 separated by distance r12, that is u is equals to मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता था, मैंने r12 इसीलिए लिखा था सो दैट आगे के फॉर्मूले आसान रहे। और ये थर्ड मास भी है m3। अगर मैं आपसे पूछूं m1 m2 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो दैट इज माइनस जी m1 m2 by r12। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? m1 m3 की। अगर ये माइनस जी m1 m2 by r12, दिस विल बी माइनस जी m1 m3 by r13 माइनस जी m2 m3 by r23। तो टोटल तीनों का सम, तीन पेयर्स बने हैं। So we can say similarly for three masses. दो मासेस थे तो एक ही टर्म थी, तीन मासेस थे तो तीन टर्म्स होगी, चार मासेस होते तो ऐसी कितनी टर्म्स बनती? पहले सिर्फ m1 m2 एक पेयर था, फिर m3 का इन दोनों के साथ पेयर बनाया, m4 रखूंगा तो उसका तीनों के साथ एक एक पेयर बनेगा, तो देयर विल बी 6 टर्म्स। Yes. अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ फॉर n मासेस तो क्या लिखूं फॉर्मूला? समेशन i j ऐसे लिख दूं चल जाएगा? mi mj upon rij। टू लगाने का रीजन, बिकॉज जब ऐसे पेयर बनाओगे ना, एक बारी बनेगा m1 m2, एक बारी m2 m1 भी बनेगा, तो हमने एक लेना दोनों में से। बिकॉज जब हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि i की तीन वैल्यूज है, जैसे चार हैं तो i की चार वैल्यूज हो सकती है, j के भी चार हो सकती है अगर चार मासेस हैं तो एक बारी टर्म बन जाएगी m1 m4, फिर m4 m1 भी बनेगी, तो हमने दोनों में से एक ही लेनी है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया फॉर्मूला लिख के। ये वैसे सर काम आपके एडवांस में आना, और किसी एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा जिसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्मली, क्योंकि दो मासेस तक ही क्वेश्चन होते हैं,
कभी कभार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बट नॉर्मली 2 मार्क्स तक ही स्टिक करते हैं वो। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, ये पढ़ के देख लेना आज वाला। अभी तक जितना किया है कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज एक शायद शीट भी सेंड कर दूंगा आपको, उसको भी ट्राई करके देखना। और ये वाला चैप्टर एचसी से मत करना, बिकॉज एडवांस में आता नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पे। एचसी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वो मैं बता दूंगा, वो कर लेना, बस सारे नहीं करने एचसी के इस चैप्टर के।